Hello students, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant and you're watching me on my YouTube channel. So आज आपके पास बहुत ही important lecture है. So you are going to have a top 50 questions of physics for NEET, UG or IIT, JEE जो भी आप preparation कर रहे हैं. So first question है आपके पास आज का. Without wasting the time, just go to the question. Question number 1 is the frequency of the incident light falling on a photoelectric metal plate is doubled. So अगर आपने इसे डबल किया है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को, तो आपने चेक करना है whether the kinetic energy of the emitted photon is doubled, it is unchanged, it is more than the doubled or less than the doubled. So बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है. As we have already known that your h nu, the energy that is equal to omega plus, that is over function, plus 1 by 2 mv square. That 1 by 2 mv square component, that is the kinetic energy component. So जैसे ही h nu की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मींस h nu क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि nu की वैल्यू डबल हो जाएगी. nu क्या है? फ्रीक्वेंसी. सो एज nu बिकम्स, जो आपका nu है, जैसे ही nu की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 nu हो जाती है, तो आपके पास वैल्यू बढ़ जाएगी ज्यादा. तो वैल्यू हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी भाई आपके पास वैल्यू. तो न्यू की फ्रिक बन गई 2 न्यू, तो यह काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर. दैट काइनेटिक एनर्जी, यहां पे आप फॉर्मूला में 2 न्यू पुट कर दीजिए, तो यू आर गोइंग टू हैव मोर देन द डबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट. आगे बात समझ में. दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है. दूसरा क्वेश्चन और भी आसान है. व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर. सो दूसरे केस में आपके पास वेवलेंथ जो लाइट की है दैट इज 300 नैनोमीटर्स falls on a photoelectrons are liberated. फोटोइलेक्ट्रिक एमिटर जो था उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ और फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड. फॉर अनदर इमिटर, however, light of 600 nanometer wavelength is sufficient for creating photo emission. 300 nanometer इंसिडेंट किया था, but we know that 600 nanometer should be required. It is the minimum value. So what is the ratio of the work function of the two emitters? So दोनों emitters का work function की value क्या है? So it's very easy because we know the work function phi that is equal to hc upon lambda naught. Lambda naught is what? It is the threshold value. So if you're going to have two values of what? You are going to have two values of work function. It is phi 1 is phi 1 is phi. Okay. So if you are going to have two values of work function, phi 1 will be hc upon lambda 1 and phi 2 will be hc upon lambda 2. So you are going to have the values hc upon lambda 2. So get the value of phi 1 by phi 2, ratio of the work function, that will be lambda 2 by lambda 1. तो lambda 2 कितना हुआ था? lambda 2 था 600 nanometer. Earlier one it was, so it is 2 is to 1. The ratio will be 2 is to 1. That's one. Clear? So answer will be 2 is to 1. तो ये आपके पास आ गया. Next question. When a monochromatic point source, भाई शेयर करते जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए नीचे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं. When a monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meters. एक monochromatic point source है, उसका distance कितना है? 0.2 meter from a photoelectric cell. The cutoff voltage and the saturation current are respectively 0.6 volt and 18 milliampere. So आपके पास cutoff voltage है 0.6 और आपकी saturation current है 18 milliampere. If the same source is placed, now the distance of the placement of the source is increased to 0.6 meter. पहले 0.2 मीटर था आपके पास, अब आपने कर दिया उसे 0.6 मीटर away from the photoelectric cell. तो आपने बताना है क्या डिस्टेंस बढ़ाने से आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती है या नहीं. The stopping potential will be 0.2. The stopping potential will be 0.6 जो कि पहले थी. The stopping potential, the saturation current will be 6. The saturation current will be 2.
सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमारे पास क्या स्टॉपिंग या सैचुरेशन किस चीज पे डिपेंडेंस है। तो भाई सबसे पहली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड डज नॉट ऑन द डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो बिटवीन द सोर्स एंड द फोटोइलेक्ट्रिक सेल, तो एक कहानी तो खत्म हो गई। सो इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन वैरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर आपका ए या एक्स या डी कोई भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट जो आपकी इंटेंसिटी है, दैट विल बी 18, दैट विल बी योर करंट इनटू 0.2 अपॉन 0.6, that is the square value. Done. That is the value 2 milliampere. तो वैल्यू व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, जो आपके पास करंट अब वैल्यू आ रही है आपके पास, दैट विल बी 2 मिली। द सैचुरेशन करंट कितनी हो जाएगी, 2 मिली एम्पेयर। तो सैचुरेशन करंट किसके बराबर होती है, आपकी जो रिस्पेक्टिव पहले की सैचुरेशन करंट इनटू द रेशियो ऑफ व्हाट, इनटू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। So you got 2 milliampere. The last one will be the answer. Done. So move towards the next question. Next question कहां से आ गया, बोर रेडियस से। बोर रेडियस से आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, अगर बोर रेडियस अगर हम ये लेके चलें, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहां पे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था कि आपके पास अगर बोर रेडियस ए नॉट है तो रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट क्या होगा। अगर रेडियस आपके पास बोर रेडियस इनर मोस्ट का, तो सेकेंड वन का रेडियस हाइड्रोजन एटम का क्या होगा भाई। हाँ जी, बोर रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, किसके, ऑर्बिट के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब है हमारा ऑर्बिट हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, सो इट्स 4 टाइम्स ए नॉट। ए नॉट क्या था उसका, बोर का रेडियस, तो आंसर विल बी 4a नॉट। दैट विल बी योर आंसर, वेरी इजी वन। तो फिफ्थ, टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोर यूज्ड, थ्योरी अपनी एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने क्या कहा था, बोर ने किस चीज को यूज किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम फ्रीक्वेंसी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई उसने तो हमें एक ही चीज बताई थी, NH/2π, और ये किसके बारे में बताया था उसने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इसके बारे में बताया था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताई थी भाई किसने, बोर ने, जब उसने एक्सप्लेन किया था बोर रेडियस एंड बोर एटम मॉडल। Done. The next question will be momentum of a photon of wavelength lambda is, किसी भी फोटोन का, फोटोन मींस ड्यूल नेचर का क्वेश्चन आ गया, डी ब्रॉगली का क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है। भाई हमें एक ही चीज पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p होती है, p उसमें मोमेंटम है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो अगर p चाहिए तो वो h/λ बन जाएगा। So we got the momentum as h/λ. That will be your next question. The next question will be the nucleus. Cadmium का न्यूक्लियस है 48115 after 2 successive beta decays. इसमें से 2 बीटा डिकेज बीटाज निकल रहे हैं, और आपको पता है तो आप पहले नीचे वाला देखने की जरूरत नहीं, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही बता देते हैं कि एवरी बीटा डिके क्या करता क्या है, हर बीटा डिके इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर। क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसको करता है, एटॉमिक नंबर को, जिसे कभी कभी हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को कर देता है इंक्रीज। दिस केस आपके पास कितनी बार बीटा डिके हो गया, 2 बार बीटा डिके हो गया, तो बीटा डिके हो गया तो एटॉमिक नंबर 2 बढ़ जाएगा। आपके पास पहले कितना था 48, 2 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 50, और 50 बढ़ने से हमारे पास तो सिर्फ बीटा डिके में, तो आपके पास आंसर आ गया
D. That will be 50 SN115. Done. The next question will be threshold frequency of photoelectric effect on sodium corresponds to wavelength. हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली जब, उस समय वेवलेंथ कितनी थी? 5000 एंगस्ट्रॉम. आपने क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है. अभी हमने ऊपर यूज किया है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला. वर्क फंक्शन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई? अगर मैं फाई यूज करूं, दैट इज एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. एच की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है? 6.6 10 की पावर -34 along with the unit joule second into C पता है 3 into 10 raised to power 8 होता है upon lambda naught. Lambda naught is 5000 angstrom. 5000 into angstrom means 10 power -10. So we got all the values. The phi will be equal to, what will the value of the work function? The phi will be equal to the value that is 4 into 10 power -19 joules. The work function, the C will be the answer. So ये आपके पास solution आ गया. Done. Let's take the next question. But ध्यान से देखिए, questions के साथ साथ इसे आप आगे फॉरवर्ड भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ. Ultraviolet radiation of 6.2 electron volt falls on aluminum surface. Kinetic energy of fastest electron emitted is work function is 4.2 electron volt. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है कितनी? 6.2. एनर्जी कितनी है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. फॉल ऑन एल्युमिनियम सरफेस. किस पे पड़ रही है? एल्युमिनियम की सरफेस पे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हमें हमारे पास आ गई है. आपने निकालनी है उनकी वैल्यू, और हमें दिया गया है कि उसका वर्क फंक्शन कितना है? 4.2. एनर्जी इंसिडेंट के 6.2 है. एनर्जी चाहिए कितनी थी? 4.2, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन है. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई? वो तो उनका डिफरेंस ही होगा. तो 6.2 और 4.2, तो दोनों का डिफरेंस आ गया. कितना आ गया? 2. और 2 बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपका डिफरेंस आया है. आपने इंसिडेंट की 6.2, चाहिए कितनी थी? 4.2. डिफरेंस कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करो भाई. क्या सिंपल तरीका है, बस ई की वैल्यू डाल दो 10 raised to power -19. तो यू आर गोइंग टू हैव 3.2 10 raised to power -19. So your answer will be this 10 power -19. Done. The next question, आपके पास गिवन रिएक्शन है. गिवन रिएक्शन में आपके पास क्या है भाई? आपके पास बहुत ही आसान, आप याद रखिए अल्फा बीटा गामास कैसे कैसे रिलीज होते हैं और कौन कौन सा मटेरियल को बनाते जाते हैं. बस वही चीजें आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना. यहां पे कुछ आपके पास यहां पे था इस तरह से ए एक्स आपका है और नीचे है जेड. ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड है. पहला रिएक्शन हुआ तो ए ही रहा, एटॉमिक मास ए ही रहा, एक्स बन गया वाई और जेड की वैल्यू में एक इजाफा हो गया, मींस इंक्रीज. एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 बट द एटॉमिक मास डज नॉट चेंजेस. देन नेक्स्ट, तो यहां पे पहले में क्या हो गया? ये तो पहला केस तो अभी मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है भाई. तो पहले केस में आपके पास क्या आ गया? बीटा आ गया. और किसी में नहीं है ऐसा, तो आंसर तो मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि यहीं से देयर इज अ बेस्ट फिट मेथड है. ये आपका बेस्ट फिट एंड ट्रायल है कि आपका पहला यहां पे सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास सेम है, तो वी गॉट बीटा. फिर एटॉमिक नंबर कम हो रहा है और एटॉमिक मास भी कम हो रहा है, और एटॉमिक मास का कम कितना हो रहा है? 4. दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू हैव व्हाट? अल्फा. अल्फा ही ऐसा पॉसिबल कर सकता है. और नेक्स्ट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा बट रेडिएशन निकल रही है. ये तो कोई न्यूट्रल चीज ही आ रही हो गई. न्यूट्रल, दैट इज गामा. दैट इज द केस ऑफ सी पार्ट. ठीक है भाई, समझ आ गया? अगला तो बहुत ही आसान है. रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, ये तो आपका आंसर ऐसे ही होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए. किस पे रेडिएट कर देती हैं आपकी? क्या केस है आपके पास? कैसे रेडिएट हो जाती हैं आपके पास?
हाँ भाई, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना, मतलब किससे यूज होती हैं? एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद ऑसिलेटर्स। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की रेडियो वेव्स कैसे जनरेट की जाती हैं? आपके पास ऑसिलेटर से यूज की जाती है। ठीक है, तो डी आंसर आ गया आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो? बहुत ही आसान फिर से क्वेश्चन। एनर्जी तो भाई हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, और न्यू हमें पता है कि C अपॉन लैम्डा, तो इट इज एच सी अपॉन लैम्डा। तो वी विल गो विद बी पार्ट। नेक्स्ट वन, in a good conductor the energy gap between conduction band and the balance band, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में तो क्या गैप होता भी है? भाई कंडक्टर की बात है, कंडक्टर का केस लेंगे तो कोई गैप ही नहीं होता, तो दैट मींस दैट देयर इज अ जीरो गैप। गैप होते हैं किसमें? सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। तो नेक्स्ट केस हम लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ रहा है। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 14. The cathode of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2. लेकिन W2 बड़ा है, W2 is greater than W1. If the current before and after changes are I1 and I2, all other condition remaining unchanged, then assuming H nu is greater than W2, तो क्या केस आ जाएगा? बहुत ही आसान है, फिर से वर्क फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। भाई तो वर्क फंक्शन है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता करंट पे। वर्क फंक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता करंट पे जब तक एच न्यू की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा ना हो। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आईपी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। इसमें प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो there is no change in the intensity of light, there isn't any change in the intensity of light, therefore I1 will be equal to I2। तो यहां पे I1 और I2 आफ्टर चेंज I1 एंड I2 हमेशा क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ वर्क फंक्शन चेंज हुए हैं। so there will not be any change. Done. Next, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है भाई, एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का। बाइंडिंग एनर्जी कर पढ़ी थी हमने। एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, एक ही तो केस होता है भाई, हमने तो पढ़ा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है विद एटॉमिक नंबर इन मैक्सिमम। किसके कारण होती है? एक ही चीज तो होती है जिसमें मैक्सिमम होती है। कौन सी चीज होती है वो? आयरन भाई। आयरन किसके केस में होती है मैक्सिमम? आयरन के केस में मैक्सिमम होती है। तो आयरन कहां है यहां? दैट इज 26 Fe56। डन। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द इंप्योरिटी एटम एडेड टू जर्मेनियम। अब आपके पास क्वेश्चन कहां से आ गया? क्वेश्चन आ गया भाई आपके पास, आपके सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन आ गया है आपके पास। क्वेश्चन आ गया है सेमीकंडक्टर से। तो देखिए सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन क्या है। तो इंप्योरिटी मतलब आपने एक्सट्रिंसिक मटेरियल बना रहे हो जर्मेनियम को, टू मेक इट एन टाइप। एन टाइप बनाया है, एन टाइप बनाया है मतलब उसमें क्या मेजॉरिटी है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से, कौन सा मटेरियल आपने जर्मेनियम में डाला उसे एन टाइप बनाने के लिए? आर्सेनिक डाला, इरिडियम डाला, एल्यूमिनियम डाला या आयोडीन डाला? भाई जब मटेरियल को बनाया जाता है एन टाइप, तो आपका मटेरियल, आपका जो होना चाहिए, जो आपका मटेरियल उसमें डालना है, जो इंप्योरिटी आपने उसमें ऐड करनी है, दैट शुड बी पेंटावेलेंट भाई। एंड देयर इज ओनली वन पेंटावेलेंट ओवर हियर, दैट इज आर्सेनिक। दैट इज आर्सेनिक। ट्राइवेलेंट होता तो पी टाइप दे देता, पेंटावेलेंट है तो हमें एन टाइप देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स, भाई ये क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का चैप्टर आ गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन का। एक्स रेज आर यूज्ड, क्यों यूज की जाती हैं? बिकॉज द क्रिस्टल्स जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह वर्क करते हैं। एक्स रेज हैव वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ इनर एटॉमिक स्पेसिंग, एक्स रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, एक्स रेज आर कोहेरेंट रेडिएशंस, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो भाई ध्यान से देखो कौन सा केस है, क्योंकि डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं हम, तो एक्स रेज हैव द वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटरनल एटॉमिक स्पेसिंग, और जो क्रिस्टल है हमारे लिए वो किसकी तरह बिहेव करता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह। तो वहां पे स्टडी करते हैं हम डिफ्रैक्शन, तो इसलिए हम यूज करते हैं एक्स रेज, ठीक है। इन द हाइपोथेटिकल बोर हाइड्रोजन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कर दो भाई डबल, द एनर्जी ई नॉट एंड आर नॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी, आपने ई नॉट एनर्जी जो है एंड द रेडियस आर नॉट ऑफ फर्स्ट, ई नॉट और आर नॉट फर्स्ट ऑर्बिट का आपने बताना है कि आपके पास क्या आ जाएगा। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, अब आपके पास क्या आ गया? हियर रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो आर है दैट इज ऑलवेज 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। रेडियस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो बस, तो अगर आपका मास हो गया डबल तो एनर्जी हो जाएगी डबल, और अगर आपका मास हो गया डबल तो रेडियस हो जाएगा हाफ। तो आपके पास रेडियस और एनर्जी कितने हो गए? एनर्जी हो गई 2 टाइम्स एंड योर वैल्यू गॉट योर दिस वन, ठीक है। तो आपके पास आपकी एनर्जी होती कितनी है? ई नॉट, दैट इज -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो डबल 2 टाइम हो गई, सो दैट इज गोइंग टू बी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ए नॉट आपका रेडियस था वो हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। A photoelectric cell converts, photoelectric cell क्या करता है? बहुत ही आसान, the light is absorbed and electrons are emitted। तो वो क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। इसका मतलब है लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयोडीन एटम? एटॉमिक नंबर दिया गया है, मास नंबर दिया गया है। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला क्या है रेडियस का? तो आर एन अगर रेडियस आपके पास आ गया, दैट इज 0.053 10 raised to power minus, that is nanometer into n square by z। ये आपका फॉर्मूला था। अब n की वैल्यू 5 है आपके पास, n की वैल्यू कितनी है? 5 है आपके पास। तो और आपके पास z की वैल्यू 53 आपको दी गई है, ठीक है भाई। तो मास नंबर 126 आपको दिया गया है, तो वैल्यू डालिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आर एन इज इक्वल टू 2.5 into 10 raised to power minus 11 मीटर। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास 21। पॉजिट्रॉन जो है सेम मास होता है कितना? प्रोटॉन का, अल्फा का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले देखो भाई पॉजिट्रॉन होता क्या है? भाई पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? किसका है भाई? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन से चार्ज उल्टा बट मास हो जाएगा सेम, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, वन डे स्पेस क्राफ्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 days ऑन अर्थ, द स्पीड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट रिलेटिव टू अर्थ इज। एक दिन स्पेस क्राफ्ट का कॉरेस्पॉन्ड करता है 2 दिन धरती के। स्पेस क्राफ्ट जो आपका ऊपर भेजा गया है, अंतरिक्ष में भेजा गया है, स्पेस में भेजा गया है, इफ यू आर गोइंग टू हैव 1 day in that spacecraft, that will be equal to 48 hours on the earth, surface of earth। Why this is so? This is only due to the relative speed, means यह spacecraft की speed के बाद।
तो आपने बताना है द स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट है कितनी, 22। तो हमने पढ़ा हुआ है टाइम डायलेशन t इज इक्वल टू टे नॉट अपॉन 1 माइनस v square by c square. v square is the velocity, c square is the speed of light. So t naught आपको हमने दे दिया 1 day, ठीक है, एंड t आपको हमने यहां दे दिया 2 days on अर्थ। तो आपको v निकालनी है यहां से, डन। तो v जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, सो यू आर गोइंग टू हैव v that will be equal to 2.6 10 raised to power 8 meter per second. So your C part done. The ground state energy of hydrogen atom 13.6 अभी निकाली, हम बताई हमने ऊपर। The energy needed to ionize hydrogen atom from its second excited state. Second excited state में ground state energy है 13.6, तो second excited state में होगी तो from its second excited state, ध्यान रहे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपकी वैल्यू कितनी थी, ये 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी तब थी जब एन की वैल्यू कितनी हो गई थी, एन की वैल्यू 1, तो मतलब एन स्क्वायर हो गया 1। ये ग्राउंड स्टेट है। इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जब एन इज इक्वल टू 2 होगा, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जब एन इज इक्वल टू 3, एन की पावर इक्वल टू 3, 3 का पावर स्क्वायर 9. So your value should be, answer should be 13.6 divided by 9. जो भी आता है that will be your answer and that is 1.51 electron volts. बात समझ आ रही है? Next, the ionization energy of hydrogen atom. फिर से वही क्वेश्चन। Following Bohr's theory, the energy corresponds to transition between third and fourth. अब थर्ड और फोर्थ के बीच का ट्रांजिशन है, मतलब आपको E3 निकालना है और आपने निकालना है E4। E3 निकालेंगे तो 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा। E4 निकालेंगे तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो यू विल गेट टू वैल्यूज, गेट E4 माइनस E3। द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है भाई, दैट इज योर वैल्यू। डन। नेक्स्ट 25, de Broglie wave correspond to a particle of mass m, velocity v, has wavelength associated with it. हमने पढ़ा, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हमें लैम्डा चाहिए, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मतलब मास इनटू वेलोसिटी, सो इट इज एच अपॉन एम वी। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इट्स डन। सो क्वेश्चन नंबर 25 वी आर गोइंग टू हैव, तो आपके पास ही आ गया एच अपॉन एम वी। Next one, the wavelength of 1 kilo electron volt photon is this one. What is the frequency? Wavelength दी गई है, frequency निकालनी है। What is the frequency of 1 mega electron volt photon? Wavelength दी गई है आपको, frequency निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास आ गया। फिर से मैंने आपको बड़ी बार बताया है, so energy is always equal to what? hc by लैम्डा। आपको एनर्जी दी गई है, ठीक है, 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब कितना है, 10 रेज़ टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ जाएगी, 2.4 10 रेज़ टू पावर 20 हर्ट्ज। दैट इज इन, इनके यूनिट साथ में नहीं है, बट यू शुड नो द फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल अदर जो आपके पास यूनिट्स हैं, दे आर इन SI। नाउ व्हाट अबाउट द 27 क्वेश्चन, व्हिच सोर्स इज एसोसिएटेड विद द लाइन एमिशन। ये एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने, एमिशन स्पेक्ट्रा जो पढ़ा था हमने, जो स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी थी हाइड्रोजन की। सो व्हाट आर द एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो किसके साथ था, कौन था, नियॉन स्ट्रीट। नियॉन स्ट्रीट साइन वाज एसोसिएटेड विद द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। Next one, the electronic configuration for the noble gas. Noble gases configuration. Noble gas क्या होती है, outermost shell में octet complete होता है। तो देखो outermost shell में octet किसका complete है, यहाँ पे 28 में। In the noble gas, the number of electrons in the outermost shell is 8. देखो outermost इसमें 2 है, 2 ऑर्बिट है इसमें, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें outermost shell 4 है, 2 है इसमें, इसे outermost shell में 2 है, तो ये भी नहीं। तो 28 का आपका आंसर आ गया आपका
फर्स्ट पार्ट बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड टू 70 किलो केल्विन सॉरी फ्रॉम रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से कूल्ड किया गया कितना? 70 केल्विन फ्रॉम द रूम. देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस. ध्यान रखना है आपने, टेम्परेचर की वेरिएशन से कॉपर और जर्मेनियम, कॉपर इज अ कंडक्टर एंड जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर. कॉपर में टेम्परेचर कम करने से क्या फर्क पड़ता है और जर्मेनियम में टेम्परेचर कम करने से क्या फर्क पड़ता है? पढ़ा हुआ है हमने. लो टेम्परेचर बिहेवियर जो सेमीकंडक्टर्स का होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर्स पे जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका, और कॉपर जो है, जो मटेरियल है, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे अगर दोनों को देखा जाता है तो मटेरियल दोनों एक दूसरे की तरह ही बिहेव करते हैं. ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है जर्मेनियम जो होता है लोअर टेम्परेचर में बड़े के बड़े क्या बन जाते हैं? ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना. और जो कॉपर है, जो कंडक्टर है, उनका भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम हो जाता है. उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम. द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस. क्योंकि आपको पता है लो रेजिस्टेंस पे, लो टेम्परेचर पे आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे बिहेव एज व्हाट? दे बिहेव एज इंसुलेटर. और टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बनते हैं. इंसुलेटर तो नहीं बनते हैं बट उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है. तो कम टेम्परेचर होने से कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा. When n type of semiconductor is heated. अब 30th क्वेश्चन है आपका कि n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है हीट हो रहा है तो क्या होगा? हीट होने पे क्या होता है? EHPs बनते हैं. EHPs मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर. इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हाइल होल डिक्रीजेस. नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन होल दोनों बराबर बनने चाहिए. तो देखो किसमें है? होल्स रिमेन सेम. नहीं भाई, जनरेट होंगे. क्यों? क्योंकि वहां पे EHPs बनेंगे. EHPs क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स. कब? जब वहां पे थर्मल जनरेशन होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. 31. द टिपिकल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डोनर इन सिलिकॉन. सिलिकॉन में डोनर की टिपिकल एनर्जी क्या है? ये स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है भाई ये. इट इज अ डोनर इन द सिलिकॉन इज क्या है भाई? सिलिकॉन में टिपिकल आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई. ठीक है. सो क्यूरी किसका यूनिट है भाई? क्यूरी किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी का. किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है भाई. एनर्जी रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ अ सिंगल 92 यूरेनियम इज दिस वन. द फिशन रेट of 92 uranium fueled reactor operating at the power level of 5 watt is. तो सिंपल क्वेश्चन है. 33 आपका है. एनर्जी फिशन आपको बताई गई है तो रेट ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो आपको आराम से आपके पास क्या है? 1.56 10⁻⁻10 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है आपके पास. समझ आ गया? सो क्वेश्चन नंबर 34. हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट of the principal quantum number 4. Then the number of spectral lines कहां से भाई? पहला 4 से कहां जंप करेंगे? 4th में है तो 4th से एक तो 3rd में जाएगी, 4th से एक 2nd में जाएगी, 4th से एक 1st में जाएगी. एक ही आ गया. ठीक है. फिर एक 3rd से 2nd में जाएगी और 3rd से 1st में आएगी. फिर दूसरी 2nd से 1st में. तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास आ गई भाई? 1 2 3 3 और 3 6. So we are having 6 1. Now 35. The energy released in a typical nuclear fusion reaction is approximately. भाई फिर से फैक्ट है आपके पास. ही फिर से फैक्ट है. न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना? फ्यूजन रिएक्शन में 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. हाइड्रोजन एटम emits ब्लू लाइट कब करता है? When it changes from n is equal to 4 to n is equal to 2. जब 4 से 2 में चेंज होता है n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से 2 स्टेट में आता है तो कौन सी एनर्जी देता है? ब्लू. ब्लू मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू. Which color of light would be emitted when it changes from 5 to
2। अगर 5 से 2 में जाएगा तो कौन सी एनर्जी रेडिएट करेगा? भाई E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, E3 की वैल्यू आपको पता है, E4 की वैल्यू पता है। सो किसके वैल्यू किसके साथ जाएगा? एंड 2 दैट विल बी योर ग्रीन कलर। ठीक है, कहां से कहां जाएगा? ग्रीन कलर। A radioactive element has half-life period 1600 years. ये उसका हाफ लाइफ पीरियड है। आफ्टर 6400 years what amount will, देखिए भाई 1600 साल में वो हाफ हो जाता है, अगले 1600 साल में उसका भी हाफ हो जाएगा, 32 हो गए, फिर अगले 1600 में उसका भी हाफ हो गया, तो कितनी बरी हो गया? 1 2 3 एंड 4, 16 4 जा तो 1 by 2 raised to power 4 मीन्स 1 by 16th पार्ट बन गया भाई। किसका? इतना आपका डिक्रीज हो गया। डन। द पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच इज हैवली डोप्ड, कौन सा पार्ट? मैंने आपको पढ़ाया है कि बे एमिटर और कलेक्टर जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, बट उनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है और कुछ फिजिकल डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा फिजिकल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्या है? द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हैवली डोप, सबसे ज्यादा डोपिंग होती है भाई किसमें? एमिटर में। सबसे कम किसमें होती है? बेस में। दोनों के बीच, एमिटर और बेस के बीच की डोपिंग किसमें होती है? कलेक्टर। सॉरी 39 क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव सैंपल, हाफ लाइफ है 1 मंथ का, एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी। व्हाट वाज एक्टिव 2? 1 महीने में वो हाफ हो जाता है, तो 2 महीने के बाद उसकी भाई एक्टिविटी कितनी होगी? 2 हाफ लाइव्स, द एक्टिविटी बिकम्स 1/4, तो उसके बाद वो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। डन। सो 1 का 1/4, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डन। ठीक है। डायमंड इज वेरी हार्ड बिकॉज इट इज a covalent, it has a large cohesive, high melting point, insoluble in all the solvents। क्यों होता है? तो बहुत ही भाई इनमें कोहेसिव एनर्जी सबसे स्ट्रांग होती है, कोहेसिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जो उसे स्ट्रांग बनाती है। 41 क्वेश्चन नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज, किस पे डिपेंड करता है भाई? फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस पे प्रोपोर्शनल होती है? इंटेंसिटी पे। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटम मास 1 AMU किसके बराबर होती है? दैट इज, ये तो पढ़ा हुआ है हमने, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड, किसके साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड करते हैं? एक्स रेज के साथ। आइसोटोप आर द एटम्स, आइसोटोप्स कौन से होते हैं भाई? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास डिफरेंट या मास नंबर डिफरेंट हो। द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट। तो आपके पास क्या आ गया? 44 आपका आ गया। फर्स्ट ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट हो गया न्यूट्रॉन तो बन गया एटॉमिक मास। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया। द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, इक्वल टू मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स, इक्वल टू मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन्स, इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसका बराबर होता है? मास डिफेक्ट होता है तो इसके लेस होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से हमेशा। सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। द मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस वैरीज विद मास नंबर, कैसे वैरी करती है भाई? आपका कैसे वैरी करती है? a की पावर 1/3। सो आपकी मास डेंसिटी किस पे करती है? मास बाय वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्यों रहता है कांस्टेंट? क्योंकि हमेशा रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ ए। इसका मतलब है a इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। ठीक है, a अगर प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, a प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है वॉल्यूम दैट इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है मींस मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन की कितनी होती है भाई? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो तो हमें लगता है कि मटेरियल हमारा कहां से निकल रहा है? फ्रॉम द न्यूक्लियस। 48 थर्मोआइंस,
भाई थर्मल, थर्मल मींस हीट, आयंस मींस चार्ज कैरियर्स। सो आपका 48 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि थर्माइंस क्या होते हैं? व्हेन अ कंडक्टर इज हीटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, दे आर कॉल्ड थर्माइंस। ओके, थर्माइंस तो क्या हो गए आपके, क्या हो गए, मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड्स? सॉलिड्स में सबसे वीकेस्ट काइंड ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होती है? वंडरबॉल्स। ओके, वंडरबॉल सबसे क्या होती है? वीकेस्ट होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपके पास क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट है। द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर if 90% of the electrons emitter reached collector। 90% आपके पहुंच गए हैं, मतलब 90% किसका? 90% किसका? आपका कलेक्टर करंट। मतलब 10% आपके पास आ गया। तो आपको पता है, हमने पढ़ा है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जो एमिटर करंट होती है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट किसके बराबर हो गई? आई ई माइनस आई सी। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? द कलेक्टर करंट इफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, द एमिटर करंट विल बी, द एमिटर करंट विल बी द बेस करंट। आपको एमिटर और बेस चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एमिटर करंट यहां से कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.9 मिली एम्पियर। ओके, तो ये आ गई आपकी आई ई, आपके पास आ गई 11 एम्पियर, और आई बी आपके पास आ गई 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपके पास ये केसेस आ गए। 50 में आपके पास दो आंसर है। ठीक है, सो बी एंड सी विल बी द आंसर। ये आगे इसके आगे थोड़ा सा कट गया है, वहां पे है ए, बी एंड सी, सी एंड डी। सो योर आंसर विल बी बी एंड सी। तो ये आज हमने देखे हैं हमारे पास 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर यहां पे भी कोई क्वेश्चन है, गेट in touch with me. I am there on the Skype, I am there on the YouTube, I am there on the certain other medias. So get in touch, just email me. My email ID is on your screen. You can get in touch with my website. There is a chat corner over there. So get in mail, get live with me on the Skype. सो स्काइप में डायरेक्ट मिल सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है नीट रिलेटेड, आईआईटी जेईई रिलेटेड, फिजिक्स के लिए, सो गेट इट बी सॉल्व्ड। सो एंजॉय फिजिक्स and crack the exam. These are the top 50 questions. Next will also be on the base of this on for the NEET. Thank you very much. Please share, please subscribe, share with your friends, and good audience will be there to discuss more problems. Thank you very much. Have a wonderful time. Thank you.